सर बहुत-बहुत स्वागत है, पधार चुके हैं और इसके पूर्व कि हमारे पत्रों का वाचन आरंभ हो, मैं इस कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद यादव जी से निवेदन करूँगी कि स्वर के औपचारिक स्वागत के द्वारा इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। माल्यार्पण एक बहुत ही महनीय कार्य होता है, तो इसमें आप सबकी भावना, हम सबकी भावना जुड़ी हुई होती है। तो अब विलंब न करते हुए, क्योंकि आज ही हमारा समापन सत्र भी है, तो पत्रवाचन की प्रक्रिया में बौद्ध धर्म दर्शन के विशेषज्ञ, हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह सर नव नालंदा महाविहार से यहाँ पर पधारे हैं और आप सबके पत्रवाचन के उपरांत कुल आप लोगों को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कृपया ध्यान दीजिए, 5 मिनट में आपको अपनी पूरी बात रख देनी है। ये भी आपका कौशल होगा कि वो जो समय आपको दिया जा रहा है उसमें आप सारी बातें रख देंगे और उसके बाद फिर 2 मिनट सर उस पे अपना वक्तव्य देंगे, अपनी टिप्पणी देंगे, कि विशेषज्ञ टिप्पणी देंगे और उसके बाद फिर नए पत्र वाचन को आमंत्रित किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं पत्र वाचन के लिए डॉक्टर सुषमा श्री को आमंत्रित करती हूँ, जिनके पत्र का विषय है पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन थ्रू द सुप्रामंडेन कॉन्शियसनेस एज पर थेरवाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। डॉक्टर सुषमा श्री, अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए आप पत्र वाचन कीजिए, 5 मिनट। Honorable Chairperson Sir, respected Coordinator Sir, and dear participants. Myself Susma Sri from Namnalanda Mahavihar, Postdoctoral Fellow of ICPR. My topic is Path of Purification through the Supramundane Consciousness as per Theravada Buddhist tradition. Consciousness is Chitta in Theravada Pali tradition. It is one of the 4 ultimate truths. Tat Bhuta Vidhammata Chatuta Paramatho Chittang Chetsikan Rupam Nibbānam iti Sabbata. Consciousness happens to be pure and luminous in its nature. It is polluted due to incoming defiling factors. With repeated influence of these defilements, it loses its natural character and gets involved with the layer of pollutions. Having such type of consciousness, a man is also polluted and starts floating in the stream of repeated existence and experience various type of suffering. In order to get rid of suffering forever, he needs to be free from the chain of rebirth and complete eradication of all pollutions. It is the state of eternal bliss called Nibbana, which is 4 ultimate truths in the Abhidhammic tradition. An adept or practitioner with right resolutions puts himself on the path of purification as prescribed by the Buddha. It has got 3 gradual steps of Sila, Samadhi and Panya. When there is no pollution in mind, the adept with the help of supramundane consciousness stop the process of coming into existence and dying forever. It is for this reason it is called Lokuttar, above the process of repeated existence. The treatment of consciousness has been made from the standpoint of the class and spheres. From the standpoint of class, there are moral consciousness, immoral consciousness, and resultant consciousness, and inoperative consciousness. All these consciousness are not of the same level. There are actually 4 levels of consciousness: Kamavachar Chit Bhumi, Rupavachar Chit Bhumi, Arupavachar Chit Bhumi, and Lokottar Chit Bhumi. Each level speaks of the stage where it has reached in the achieving the purity. The types of consciousness under each sphere are named after them as Kamavachar Chit, Rupavachar Chit, Arupavachar Chit, and Lokottar Chit. The 3 classes of consciousness, moral, immoral, and non-moral, Kusala, Akusala, and Abhyakat Chit, are available in Kamavachar Chit Bhumi,
In other three spheres of consciousness, there are only moral and non-moral. There are altogether 89 types of consciousness, consisting of 12 immoral consciousness, 21 moral consciousness, 36 resultant consciousness, and 20 inoperative consciousness. Or 54 Kamavachar, 15 Rupavachar, and 12 Barupavachar, and 8 Lokutar. No stage of the Lokutar plane can be realized by the consciousness of the Kamavachar plane. An adept of the Rupa or the Rupa plane may, under the influence of ignorance, will lead to think that it is an eternal and blissful state. He may thus create craving for life. His active jhana consciousness will then resulted and as an effect of which he will be reborn. He will be born again after that. The last residuals of pollutions are called Sanyojana. Of course, these are very big. Sir, it may be concluded that trading on the righteous path, we build for ourselves a ladder of consciousness on which we can climb and touch the very pinnacle of peace at supramundane level, free from all rebirth and chain of repeated existence. That is the state of eternal bliss called Nibbana in Theravada tradition. More idea regarding this path of purification. Your personal concept, whatever you have developed through your PhD and postdoc program. Sir, actually, the state, whatever text says, the basic fundamentals, we cannot change it. But if we study and we give the some if some sir, yeah, I want to explain the chitta that Kamavachar, Rupavachar, Lokutar, and I focused on the Lokutar chit. But it is not sudden we can reach on the Lokutar chit, sir. So if we first of all we have to we are in on Kamavachar and we Rupavachar, then Rupavachar, then Lokutar. If we practice at least something Sila Samadhi and Prajna, then we can lead our life in the right way. And if we will not aware about these things, then we cannot understand about the Lokutar, whatever chitta is associated with us. All participants, because it can't be achieved in 1 or 2 days or 1 or 2 weeks or 1 or 2 months. But in every research paper and in every research project, there should be your findings. If you are not adding your findings, then this will be preparation. Okay? So just avoid all these things. And from today onwards, you add this component in your research life. Okay? Okay, thank you. Thank you, sir. Because you all are grown up. अभी रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च होना चाहिए. सोचो, बैठो, पढ़ो और उस पर बैठ के चिंतन करो. यू जस्ट थिंक ओवर द स्टडी, थिंक ओवर द इनपुट, द आइडियाज यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. अनुमति है सर. अगला पत्र है सत्यम शंकर सोनकर और अंकित जायसवाल का, और इनके रिसर्च पेपर का विषय, पत्र का विषय है निब्बाना, a self realization to cessation of bondage through purification of soul. Thank you everyone. I am Satyam Sonkar and pursuing PhD and from Department of Philosophy and Religion. हेलो सर, जब आप बोल रहे हैं कि हम क्या अब तक की एक हफ्ते में गेन किए हैं, दूसरे प्रेजेंटर कौन है? अंकित जायसवाल. कहाँ है वो? इज गॉन सर. तो ना वो प्रेजेंट है और ना जो है सो अब उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आई डोंट नो इन दिस पेपर. ईमानदारी से बताओ. सर ईमानदारी से हम बता रहे कि हम कट टेस्ट किए हैं, इसको हम छोड़ते हैं
और जो हाँ। मैंने गेन किया है उसके बारे और में। उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो लड़का जो तुम्हारे सर, साथ अटैच हो गया है? सर कंट्रीब्यूशन आपको नहीं, पहले वो बताओ। तो देखो, एक बात सुन लो कान खोल के, हम भी मतलब, सर इसीलिए सच बोलने के हाँ, लिए तो झाड़ू मैं लगाने से लेके और थ्योराइजेशन तक डेवलप किया गया है मुझे, तो मुझे सब पता है कि आप लोगों ने क्या किया है। और आईसीपीआर देश की संस्था है, बीएचयू में ये सारे लोग अपना समय और संसाधन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी और कुछ नहीं, अपनी ऑनेस्टी इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, ठीक है ना? अब बताओ, उस बच्चे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने सिंपली नाम ऐड कर दिया है। समझ गए डॉक्टर साहब? यही फैक्ट है। चलो आगे बोलो। सर, हम निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब हम सोच रहे हैं कि हम निर्वाण जो प्राप्त कर रहे हैं, हम्म तो निर्वाण प्राप्त करने का यहाँ पर दो सेंस बताया जा रहा है। पहला सेंस आप बता रहे हैं जैसे कि एक मेंटल स्पेस में एक मेंटल सिचुएशन हमारा है निर्वाण का, जिसमें हम अपने कर्मों को या अपने जितने भी कर्म कर रहे हैं उसको किस तरह से हम बैलेंस करते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। और फिर नेचर के अकॉर्डिंग इन द सेंस कि नॉट इन द नेगेटिव सेंस, जस्ट इन पॉजिटिव, what I am thinking about the nature and what I want to live in, how to live in the nature and the society. According to these situations, we are decide to our life to survive. Then my point is that there are two types of born in this world. When we have take the birth in this in the same time, just in two types in the sense is we have taken the birth and an object of according to the nature, and second is we are the conscious being. Then they have I have taken the two types of birth in the same time, and second is a consciousness based birth. Means if you are not I have not consciousness in us, then we cannot decide how to live in this world. Yes sir. ठीक है सर। यस। सर थोड़ा सा और बात करते तो सीधे। अगला पत्र है डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार और अंशु कुमार का, अभिधम्मत संग्रहों में वर्णित रूप का विवेचनात्मक अध्ययन। डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार और अंशु कुमार। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आदरणीय आचार्यगण, आदरणीय शोध छात्र, सभी को मेरा प्रणाम। इस कार्यशाला में 7 दिवसीय जो हुआ उसमें एक मैं अपना शोध का शीर्षक किया हूँ, अभिधम्मत संग्रह में वर्णित रूप का विवेचनात्मक अध्ययन। अभी शब्द अतिरेक या विशेष के अर्थ का वाचक है। धम्मत का अर्थ प्रस्तुत ग्रंथ का नाम अभिधम्मत संग्रह इसलिए है कि इसमें अभिधम्म पिटक में वर्णित तत्वों का सार संक्षिप्त रूप में प्राप्त होता है और जिसका अर्थ धर्म संबंधित बातों का संग्रह है, जिसमें चित्त, चैतसिक, रूप और निबान ये 4 परमार्थ धर्म ही समस्त अभिधर्म के सामान्य अभिधेय हैं। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक के परिज्ञान का अध्ययन नितांत अपेक्षित होता है। इस ग्रंथ में 9 अध्याय हैं। अभिधम्मत संग्रह में 6ठा अध्याय रूप का वर्णन किया गया है। सभी रूप धर्म कलाप धर्मों से मिलकर बना हुआ है। वस्तुतः समस्त रूप धर्म कलापों का संघात मात्र और समस्त भौतिक शरीर रूप धर्मों का संघात मात्र है।
सूक्ष्मतः या परमार्थ दृष्टि से यह भी कह सकते हैं कि यह समस्त शरीर अवयव धर्म कलापों का ही संघात मात्र है। पाली बौद्ध साहित्य के अनुसार यदि सामान्यतः व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व की व्याख्या की जाए तो इसकी व्याख्या रूप के अंतर्गत ही करेंगे, क्योंकि यहाँ रूप को व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर ये रूप क्या है। अतः इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि रूपति ति रूपं या रूपति ति भवे रूप विकार पच्ची ये सती, अर्थात जो परिवर्तनशील है या परिवर्तित होता है जो वही रूप है। अभिधम्म संघोष में व्याख्या करते हुए कहा गया है कि उत्पाद स्थिति एवं भंग के क्रम में जो रूप धर्म की स्थिति है उसे वर्तमान रूप कहा गया है, तथा उत्पाद स्थिति एवं भंग को प्राप्त कर जो रूप निरुद्ध हो जाए वह अतीत रूप है, तथा जो उत्पाद स्थिति या भंग को प्राप्त नहीं हुए अनागत रूप है। जिस रूप के हेतु एवं प्रत्यय कार्य समाप्त हो गए हैं वे अतीत रूप कहलाते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार रूप कोई ठोस पदार्थ नहीं है, जहां रूप की व्याख्या गुणात्मक है। अतः मनुष्य के अस्तित्व का नाम के अतिरिक्त जो कुछ भी भिन्न उपलब्ध होता है उसे रूप कहते हैं, तथा यहाँ रूप एक भौतिक पदार्थ जो चित्त चैतसिक से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ रूप के संदर्भ में कहा गया है कि ये गुण अतिरिक्त द्रव्य या ठोस पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के लिए किसी घर का रंग लाल है तो यहाँ घर से कोई लालिमा या लालिमा से भिन्न कोई घर नहीं है। नहीं सर, एमफिल नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, फिलोसफी डिपार्टमेंट सर, पूर्णिमा अग्रवाल गार्गी कॉलेज की। सर ये रूप जिसे रूप कोई मतलब एक 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 सब्सटेंस नहीं है, एक तरीके से वो क्वालिटी है, और क्वालिटी के चलते वो सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस है। और रूप इसीलिए है क्योंकि चित्त चैतसिक रूप से ही जुड़ के नाम रूप का प्रपंच बनाता है। तो पूरा का पूरा जो अस्तित्व है इसी रूप और नाम पे टिका हुआ, और निर्वाण में रूप और नाम दोनों का निरोध हो जाता है, तो वो निर्वाण की अवस्था आती है। और जी 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 रिटायर हो चुका है। अच्छा जी सर। मैं बता सर, ये जो चार महाभूत है और उसके अपने गुण धर्म है, इसे अष्टकलाप बोला गया। और अंतिम रूप से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं और ये नष्ट होते हैं, और इसी में मतलब अंतर के कारण सर थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ सर।
अनुमति है सर। अगले पत्र हेतु पुष्पांजलि कुमारी और ज्योति कुमारी अभिधम्मत संग्रहों में वर्णित कामावचर चित्त का विवेचनात्मक अध्ययन। आमंत्रित है पुष्पांजलि कुमारी और ज्योति कुमारी। Respected chairperson and participants, my name is Puspanjali Kumari, Department of Pali from Nav Nalanda Mahavihar Deemed University. मेरा विषय है अभिधम्मत संग्रहों में वर्णित कामावचर चित्त का विवेचनात्मक अध्ययन। अभिधम्मत संग्रह 4 शब्दों के योग से बना है। अभि जोड़ धम्म जोड़ अथ जोड़ संग्रह। अभि शब्द की व्याख्या अठसालिनी में इस प्रकार की गई है। धम्मातिरेक धम्म विशेषठेन अतिरेक विशेषथ दीपको हेथ अभिसद्दो, अर्थात जो उत्कृष्ट प्रणीत श्रेष्ठ विशेष इत्यादि। धम्म शब्द से तात्पर्य है बुद्ध वचन, जो अपने स्वभाव को धारण करता है वह धर्म है। यह धर्म शब्द की शाब्दिक व्याख्या है, परंतु पाली वाङ्मय एवं बौद्ध दर्शन में धम्म शब्द का अर्थ बुद्ध वचन है। अभिधम्म शब्द उत्कृष्ट परमार्थ देशना का द्योतक है। कामावचर काम और अवचर शब्द से मिलकर बना है। काम शब्द से तात्पर्य है जहाँ इंद्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो। चित्त की वह अवस्था जिसमें मनुष्य इंद्रियों के बस में रहता है। इंद्रियां अपने विषयों अथवा अपने अनुकूल विषयों में रमण करना चाहती है एवं इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से जो चित्त उत्पन्न होता है उस चित्त को कामावचर चित्त कहते हैं। 6 इंद्रियां अपने 6 विषयों से आबद्ध होती है। इंद्रियों एवं विषयों के मध्य संबंधों में व्यापित अवस्था एवं उस अवस्था में विचरण करना अवचर कहलाता है। कामावचर चित्त को परिभाषित करते हुए कहा गया है, कामे अवचरति इति कामावचरं। जो काम भूमि में विचरण करता है वह चित्त कामावचर चित्त कहलाता है। कामावचर चित्त की कुल संख्या 54 है। यह कुशल अकुशल विपाक एवं क्रिया में विभाजित है, जिसमें कुशल कामावचर 8, अकुशल 12, विपाक 23 एवं क्रिया चित्त 11 है। कामे 23 पाकानि पुण्य पुण्यानि विशति एकादश क्रिया चेति चतुपयास सब्बथा। क्रिया चित्त अरहत की चित्त अवस्था है। तो इसमें विपाक जो फल मिलता है वो अरहतों की अवस्था में नहीं मिलता है, तो इसे इसमें कोई विपाक बनता नहीं है। तो इसे जो चक्षुष श्रोत्र ये जो 5 इंद्रियां और क्या है 11 क्रिया चित्त। कार्य कर रहा है, नेचर देख रहे हो। क्रिया चित्त भी वही है, तो मनस सागत ज्ञान संप्रयोग कर साथ कार्य करना सब कार्य करना है। ज्ञान में प्रयोग करना है ना जी। तो ये अरहत जब कार्य करता है सब लगता है कि इसमें 6 पुत्र है, 6 हेतु फंक्शन नहीं 3 हेतु फंक्शन कर रहा है। अलोभ अदोष मोह लगता है, लेकिन फंक्शन नहीं करता। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसका जो प्रकटीकरण है वो ऐसा लगता है कि कामावचर की चुप्पी में रमन कर रहा है, लेकिन वो करता नहीं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के कारण उसको इसमें रख दिया गया, लेकिन उसका जो इसेंस है
Thank you, sir. अगला पत्र है देचन जस्किट और सेवांग लामो, माइंड, मेंटल फैक्टर्स एंड देयर फंक्शंस। Hello. Okay. First, I would like to thank you, the Philosophy Department, for conducting this workshop. Thank you, Professor Rahul Kumar and Professor Baleshwar Prasad. So my topic is my mechanism of mind and mental factors. So the first question we have to ask is, what is mind? Because since we are correlating the difference between the mind and mental factors, how they are functioning. So the first question we have to ask is, what is mind? So for mind, we have, for me, I have learned two definitions, that mind is that which is clear and knowing. And in Abhidhamma Sangaho, we learn that consciousness also, when I use the mind, consciousness, so they are synonym, I want, like, they are synonym, so don't take it as different. So consciousness in Abhidhamma Sangaho, we learned that is a awareness which has similarity with mental factors that arise, it accompanies. So here we can merge these two definitions that is given to the mind. So we can see that a mind which is clear in knowing and which has similarity with mental factors that arise as its accompaniers. So when I make this statement, what does it mean? So when it means that when my mind is perceiving an object, like say if I'm seeing this mic, so the object of engagement is mic. So my eye consciousness is seeing the mic, and my mental factors, the object of observation is same, the mic. So in this case, the object of observation is for the mind, and for the mental factors, they are same. So this is the basis on which we can say that I can justify the statement that I have given, the definition of mind. And we can also say, since the object of observation of the mind and the mental factors is same, that is the mic. So the arising, abiding, and cessation of my mind is simultaneous. Like when my eye consciousness see the mic, and my mental factors like attention, feeling, or intention, when it sees the mic, so they are produced at the same time. So this is the one point we can say that mind. What is mind? The definition of mind. So coming to the main point, we say that in Theravada there are 52 mental factors, and in Abhidharma Kosh we can say that there are 51 mental factors. So my point is to just see how the mechanism to how the mind works. So I'm working on the 5 omnipresent mental factors. So in Abhidharma Kosh, only 5 are given. So the mechanism is that when I perceive the object, so what is the mechanism? How does it occurs? So in order to engage with an object, first I need contact. So the sequence given is the sequence that is given in the text, and I'm altering it a little bit. So first I will take contact. When I see the object, mic, so first I need to contact that. I have to see the object, and then attention. Okay, then I say, okay, this is mic. And then the discrimination comes. Okay, this mic is black in color. But so here the main factor is discrimination. So when I say that this mic is black, so my mind can think, okay, this is black, but I like blue color. So yeah. Okay. Okay, thank you. Okay. Hmm? Hmm? Okay. So in my what I have understood, that mind and consciousness, they are synonym. So for psychic factors, we have explained there are 52. There are 52 in Abhidharma Sangaho. Mind is the main agent that is performing the action, and mental factors are the one, like soldiers, who are helping to do any actions. So this is how I perceive, because when I see my eye consciousness, and then I need contact, attention, feeling. Okay. विज्ञान is okay, sir.
Chitta is consciousness and Vigyan is feelings. And what is Man? Man is mind, consciousness also, I guess. Position of Man. So, I have no idea. In their senses, faculty. Thank you. अगला पत्र है प्रवेश कुमार और राज नारायण यादव। बौद्ध धर्म में कर्म विभाजन के 3 आधारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। है सर। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वद्जनों का धन्यवाद, नमस्कार। इस अवसर के लिए मेरा नाम प्रवेश कुमार है, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज BHU से हूँ, और जो मेरा पेपर का टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म में कर्म विभाजन के 3 आधारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। जैसा कि देखा जाता है कि वर्ल्ड के लगभग सभी धर्मों का जो आधार है, जो आधारभूत स्तंभ है, वो कर्म ही माना जाता है, और कर्म के आधार पर ही सभी जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो अपने आप को अलग अलग थ्योरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, जो बुद्धिज्म की थ्योरी है, वो इसको 3 रूपों में कैटेगराइज करके जनरली देखती है, जिसको हम काय, वाक एंड मन के रूप में देखते हैं। बौद्ध धर्म में इसे जो काय कर्म है उसको 3 रूपों में फर्दर डिवाइड किया जाता है, पाणातिपाता, अदिन्नादाना और कामेशुमिच्छाचारा। पाणातिपाता के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो किस तरह से अपने बॉडी के द्वारा किसी चीज को किल करता है, इन जनरल सेंस कि वो यदि किसी के जीव की हत्या करता है, मारता है, उस सेंस में लिया जाता है। लेकिन ये जो एक्शंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है माइंड से। इन स्पेसिफिक सेंस द ऑल एक्शंस ऑफ द पर्सन्स इज डायरेक्टेड बाय हिज माइंड्स। इसके लिए धम्मपद में पहले ही एक गाथा है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुख मनवेति छाया और सॉरी चक्को वा हतोपदं हतोपदं चक्को वा हतोपदं। उसके बाद फर्दर जो अदिन्नादाना टर्म्स है, इसका मतलब है कि जो वस्तु आपको दी न गई हो, जो आपकी नहीं है, अर्थात आप अपने बॉडी के द्वारा चोरी नहीं करेंगे, या यदि आप चोरी करते हैं तो ये अकुशल कर्म है। तीसरा जो टर्म है कामेशुमिच्छाचारा, ये नैतिक दुराचार, कामाचार, या जो काम भावना है, चीजों के प्रति तृष्णा है, उसको लेकर के डिफाइन करता है। जो दूसरा विभाजन है वाचिक, इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें है मूसावाद, पिशुनु वचन, फरुस वचन और अभिसंप्रलाप। संक्षेप में मैं इसका जो जनरल मीनिंग्स है एक एक को बताता जा रहा हूं। मूसावाद से यहाँ पे जो अभिप्राय है वह है झूठ बोलने से है, और पिशुन वचन का जो अभिप्राय है वो चुगली करने से है। फरुस वचन का अभिप्राय जो है वो कठोर बोलने से, कड़वा बोलने से है। और अभिसंप्रलाय को 3 तरह से यहाँ पे बताया गया है। अभिसंप्रलाय का मतलब होता है कि जिसकी जरूरत ना है उसे बोलना या उसकी बात करना। इसमें मिथ्या दृष्टि, लौकिक और सत्य
अभिसंप्रलाप के रूप में 3 टर्म्स आते हैं। मिथ्या दृष्टि लगभग सभी लोगों ने सभी क्लासेस में पढ़ा है। अच्छा, जी सर, मेरे समझ से चेतना तो मूल है कर्म का। बिना पहले कोई भी कर्म आएगा चेतना में आएगी। उसका मूल मानसिक है, उसके बाद कायिक आएगा, वाचिक आएगा, फिर कायिक आएगा सर, मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझा। जी 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 जी, थैंक यू। अगली पत्र हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ सौरभ द्विवेदी और प्रतीक झा को। अभिधम्मत संग्रहों में चित्त की अवधारणा एक समीक्षा। सौरभ द्विवेदी और प्रतीक झा। यस, धन्यवाद मैम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी विद्युत जन को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, मैं शोध छात्र हूँ BHU का, इसी डिपार्टमेंट से। मेरा जो शोध का विषय था वो अभिधम्म संग्रहों में चित्त की अवधारणा से था। तो इसको विगत 6 दिनों में, यस सर, जी जी, तो इसमें विगत 6 दिनों में सर काफी जानने को मिला है, लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि इसको 7 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बड़ा ही गूढ़ सिद्धांत है, रहस्य है। तो जितना मैंने सर समझा है इसमें कि अगदी चित्त के हम कॉन्शियसनेस को किसी भी तरीके से, जो कि बौद्ध दर्शन में जो सिद्धांत बताए गए हैं और या जो मार्ग बताया गया उसके माध्यम से इसका हम विकास करते और निर्वाण की स्थिति में पहुंचते हैं, तो हम संसार की समस्त जो भी समस्याएं हैं, जो दुख हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या निखिल ब्रह्मांड तक की बात करते हैं, उन सभी का समाधान कर सकते हैं। परंतु ये जो मार्ग है, इसको चित्त की अवस्था की जो पराकाष्ठा है, उसका मार्ग जो है वो बड़ा दुर्गम है। और सर ये 6 दिनों में मैं उसको समझने का प्रयास किया, प्रथम 3 दिन में कि ये है क्या, और अंतिम 3 दिन में मुझे क्या करना यही समझता रहा। तो बहुत ज्यादा सर इसके बारे में मैं नहीं जान पाया, बस इतना ही था कि चित्त का पराकाष्ठा कैसे करना है, और यदि कर लेते हैं तो उससे हम जो मोक्ष प्राप्त करते हैं उससे समस्त संसार के दुखों का, समस्याओं का निदान हो सकता है और समस्त ब्रह्मांड का बोध हो सकता है। यही था सर मेरा बस फाइंडिंग। हम लोगों ने सर, धन्यवाद सर मिलकर सर 7 इसमें किए हैं सर। जहां तक सर हम, हेलो, हाँ सर, जहां तक सर हम समझ पाए हैं जो चित्त है अभिधम्म संग्रह में, तो सर इसमें विभिन्न प्रकार बताए गए हैं कि चित्त की जो अवस्था या स्थिति होती है वह किस रूप में परिवर्तित होती रहती है, कार्य को लेकर, हमारे विचारों को लेकर। यहाँ सर चित्त को कुल 89 माना गया है और टोटल सर 121 चित्त की संख्या है। और सर चित्त को यहाँ भागा गया सर 4 भागों में, भूमि, संप्रयोग और वेदना और संस्कार के रूप में। जिसमें सर भूमि आपके 4 प्रकार के हैं, जैसे कामाचार, स्वरूपाचार, अस्वरूपाचार, लोकोत्तर। लोकोत्तर को भी सर यहाँ 3 माना गया है और उसमें भी सर कुशल, अकुशल और लोकोत्तर का प्रयोग किया गया है। तो सर कहने का सेंस ये जो चित्त है अभिधम्म संग्रह में जो उसको बताया गया है कि चित्त की जो हमारी स्थितियां हैं वो हमारे कर्म के अनुसार किस प्रकार परिवर्तित होती हैं, उनकी स्थितियां क्या है, हमें कैसे इस पे काम करना है, इससे बचना है। सर यही चित्त। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगला पत्र इंद्रश्री बौद्ध और जितेंद्र कुमार का है और जिनके पत्र का विषय है
अभिधम्मत्थ संग्रहों में अरूपावाचर चित्त का स्वरूप। धन्यवाद मैम। मंच पे मंचासीन समस्त सदस्य और वर्कशॉप में प्रतिभागीजन, जैसा कि मैम ने बताया कि मेरा विषय अभिधम्मत्थ संग्रह में अरूपा अवचार चित्त का स्वरूप। सभी लोग यह तो जान ही चुके हैं कि अभिधम्मत्थ संग्रहों का अध्ययन 7 दिनों में नहीं किया जा सकता है। सर जैसे जब विद्वान ये बात कहते हैं कि 7 दिन में नहीं हो सकता है, तो हम अभी तो रिसर्च स्कॉलर ही है, हमारे लिए तो ये समझना और भी मुश्किल है। फिर भी जो बात हम समझ सके, जो जाने, वो हम कहना चाहेंगे। अरूपावचार चित्त का स्वरूप। चित्त का स्वरूप तो सभी जानते हैं कि इंद्रिय, मनुष्य के साथ जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों के साथ जो चैतसिक धर्म है, चैतसिक धर्मों के साथ जो विषय, जो चित्त उत्पन्न होता है, जो विषय उत्पन्न आता है, जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं, यह भी एक ध्यान की अवस्था के बारे में कहते हुए कहा गया कि रूप ध्यान के अभ्यास में साधक का चित्त निर्मल, शुद्ध, शांत एवं क्लेश रहता है। चित्त की ऐसी अवस्था में प्रज्ञा भावना की जाती है, पर साधक ध्यान की कुछ अवस्था में जो कामावचार चित्त है, उसके ऊपर उठकर अपनी ध्यान की स्थिति को बढ़ाता है, अपने चित्त को अधिक शुद्ध एवं सूक्ष्म बनाता है। इसलिए वह अरूप ध्यान के लिए प्रवृत्त होता है। अरूप ध्यान का अर्थ है कि वह आकार रूप से उठ करके, कामावचार चित्त में कोई भी साधक या मनुष्य रूप और आकार का ध्यान करता है, किंतु अरूपावचार चित्त में जो ध्यान की अवस्था होती है, वह रूप में नहीं होती है, उसके आकार पर नहीं होती है, उसके रंग पर नहीं होती है। अरूप का अर्थ है रूप, वन एवं आकार रहित आलम्बन, अर्थात जिस आलम्बन का कोई वन एवं आकार नहीं होता, वह रूप विरहित आलम्बन ही अरूप आलम्बन है। इसलिए वह चित्त जो रूप विरहित आलम्बन पर एकाग्र होता है, उसे अरूपावचार चित्त कहते हैं। पाली में भी कहा गया अरूपे अवचरति अरूप अवचरं। अरूप ध्यान एवं चित्त की अवस्था। रूप ध्यान से चित्त में इतनी एकाग्रता उत्पन्न होती है जिससे वह किसी भी वर्ण या एवं आकार संपन्न आलम्बन पर समाहित हो सकता है। जी सर, अरूपावचर वो है जिसमें वर्ण आकार नहीं होता है। जब हम कामावचर से बढ़ते हैं रूपावचर की तरफ, वहां 5 ध्यान का अभ्यास करते हैं, उसके बाद हम आते हैं अरूपावचर में। अरूपावचर में 4 विभाग हैं, जिसमें जो है आकाशायतन है, विज्ञानंचायतन है, और अकिंचायतन है, और नेव संज्ञानंग है। आकाश सब साधक रूप ध्यान की अवस्था में जाकर सर्वत्र रूप आलंबन को व्याप्त देखता है, वह अपने योग बल से उस रूप को हटा देता है। अब सर्वत्र व्याप्त रूप तो समाप्त हो जाता है। जहां रूप समाप्त हो जाता है, उसके सामने अनंत आकाश दिखाई पड़ता है। वह उसी अनंत आकाश को अपने चित्त का विषय बनाता है, बनाकर उपेक्षा, जो पंचम ध्यान में लास्ट है, उपेक्षा और एकाग्रता नामक 2 ध्यानों के साथ उस पर ध्यान करता है। सर, वही आकाश अनिंचायतन है। सर, आकाश रूप परिच्छेद रूप क्या है? जी है, आकाश है ना? जी जी।
तो एक तरफ तो आकाश रूप है, जी जी आप यहाँ आकाश की विशालता को कहते हैं कि अरूप है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है? जी, हो सकता है इसको यहाँ और किसी दूसरे माध्यम में लिया गया। ठीक है, ये बाद में डिस्कस कीजिएगा, जी 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 ये जी। बहुत गूढ़ विषय है। जी। अगला बताइए, सेकंड। विज्ञान अनिंच आयतन, आकाश आयतन चित्त ही विज्ञान है। इस चित्त को प्रथम अरूप विज्ञान कहते हैं। यह प्रथम अरूप विज्ञान अनंत आकाश विज्ञप्ति का आलंबन करता है। अतः आलंबन के अनंत इस नाम का विज्ञान में उपचार करके स्थानोपचार प्रथम अरूप विज्ञान को भी अनंत कहते हैं, अनंत अवस्था में जाता है। प्रथम अरूप ध्यान अर्थात अनंत आकाश में पूर्ण एकाग्रता को अनंतर साधक उसके स्वरूप का चिंतन करता है और वह देखता है कि वस्तुतः आकाश कुछ नहीं है। उसका चित्त अर्थात विज्ञान ही अनंत आकाश में व्याप्त है, इसलिए वह अनंत आकाश को छोड़कर अनंत विज्ञान को ही अपना ध्यान का विषय बनाता है। तीसरा, अकिंचायतन, साधक अरूप ध्यान से क्रमशः आगे बढ़ता है। वह द्वितीय ध्यान में परिपक्वता को प्राप्त होने पर उसके विषय के स्वरूप पर विचार एवं विश्लेषण करता है। ऐसा करते हुए वह देखता है कि विज्ञान वस्तुतः कुछ नहीं है, वह चैतसिकों का मात्र सम्मिश्रण है। इस तरह विज्ञान में भी तत्वता कुछ नहीं पाता है। नथ्य किंच नंथ किंच, अब उसके समक्ष विज्ञान का अकिंच तत्व भाव ही रहता है, इसलिए वह विज्ञान के अकिंच भाव को ही अपने ध्यान का विषय बनाता है। अकिंच भाव क्या है? जी, अकिंच भाव क्या है? अकिंच मीन्स अनंत सर। ठीक से अध्ययन कीजिए इन चीजों को। अगला पढ़िए। नैव संज्ञा संज्ञानंग, नेव संज्ञा संज्ञा संज्ञायतनंग, इसको पढ़िए। साधक तृतीय चित्त के आलंबन को शांत एवं प्रणीत समझकर अपने ध्यान के अभ्यास को बढ़ता है। उसका चित्त इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह आलंबन को ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः विषय ग्रहण करने का काम चित्त में विद्यमान संज्ञा चैतसिकों करती है। ऐसी अवस्था में संज्ञा चैतसिक के अनंत सूक्ष्म होने के कारण विषय के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से इसे नैव संज्ञा कहा जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि संज्ञा का अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका उच्छेद हो गया है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी स्वस्वभाव के कारण संज्ञा परमार्थ रूप में विद्यमान रहती है। इसी अर्थ में ना असंज्ञा कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि चित्त में विद्यमान संज्ञा की सूक्ष्मता के कारण साधक का चित्त इतना सूक्ष्म हो जाता है। चित्त की ऐसी अवस्था को नैव संज्ञा संज्ञायतन कुशल कहा गया है। चलिए ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़िए। और कैसे पढ़ेंगे? अष्टकथाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। ये तो क्या है कि ये पूरा मिक्सचर है अभिधम्मक संघो। सातों ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा, ठीक है ना? करिए। अगले पत्र हेतु आमंत्रित हैं सुष्मिता बनर्जी, जिनके पत्र का विषय है चित्त वीथियों का मानव जीवन से संबंध अभिधम्म संग्रह के परिप्रेक्ष्य में। सुष्मिता बनर्जी, अपना अपना परिचय भी दीजिए कुछ सेकंड में। मैं सुष्मिता बनर्जी इस विभाग में शोधरत हूँ और मेरा शोध पत्र है चित्त वीथियों का मानव जीवन से संबंध। शोध का विषय क्या है? चित्त वीथियों का मानव जीवन से संबंध है। नहीं, शोध नहीं, पत्र जो आप पीएचडी कर रही हैं उसका क्या विषय है? मेरा है बौद्ध धर्म और नव बौद्ध धर्म का विवेचनात्मक अध्ययन। और अच्छा, बुद्धिज्म पे ही कर रही हैं? हाँ। चलिए बताइए, पेपर में क्या लिखा है आपने? समयाभाव के कारण जितना भी हो सका है मैंने उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करने का कोशिश की है। और शुरुआत करते हैं। चित्त वीथियों का मानव जीवन से संबंध अभिधम्मत संग्रह के परिप्रेक्ष्य में। वीथि का अर्थ मार्ग होता है। जिस प्रकार संसार में गमनागमन के लिए अनेक मार्ग होते हैं,
उसी प्रकार चित्त की गतियां भी अनेकविध होती हैं। पथ के समान होने से इन्हें वीथी कहा जाता है। इनके द्वारा चित्त की स्थितियों का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। एक क्षण में होने वाले चित्त का भी अनेक प्रकार से विभाजन किया गया है। अभिधर्म के अनुसार ये वीथियां मुख्यतः 2 प्रकार की बतलाई गई हैं। इन वीथियों के ज्ञान के अभाव में मानव चित्त के व्यापारों को जानना या समझना सरल नहीं है। अतः मानव व्यवहारों को समझने के लिए चित्त वीथियों को जानना आवश्यक है। इसमें जो मेरा मुख्य जो विषय और जो मैंने इस पे निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि समुद्र में तरंग की भांति ये वीथियां मानव चित्त में बराबर उत्पन्न होती रहती हैं। न केवल जागृत अवस्था में वरन सुषुप्ति और मूर्छा आदि की अवस्था में भी ये प्रवाहमान रहती हैं। ये चित्त वीथियां ही जीवन है। मनुष्य इन वीथियों का समूह है। इनके द्वारा मानव प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है और इस तरह इनका मानवीय व्यवहारों से घनिष्ठ संबंध ज्ञात होता है। तो चित्त वीथियों का मानव व्यवहारों से जो घनिष्ठ संबंध, इसको मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ये चित्त वीथियां इस त्रैभौमिक संसार में अनादि काल से प्रवृत्त होती चली आ रही हैं और तब तक उत्पन्न होती रहेंगी जब तक मनुष्य अरहत्व की प्राप्ति नहीं कर लेता। इसी के साथ संक्षिप्त में जो मैंने किया है उसको थोड़ा बताते हैं। चित्त वीथि शब्द का अर्थ विषय विजानन प्रक्रिया किया जा सकता है। अनेक रूपों में अभिव्यक्त संसार के सभी पदार्थ अनेक होते हुए भी अभिधर्म दर्शन के अनुसार 6 विषयों में अंतर्भूत हो जाते हैं। वे हैं रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य तथा धर्म। सभी दृश्य पदार्थों को रूप, श्रव्य पदार्थों को शब्द, आग्रेय पदार्थों को गंध, आस्वाद पदार्थों को रस, स्पृश्य पदार्थों को स्पृष्टव्य तथा चिंत्य पदार्थ अच्छा यस सर, शुक्ला सर पढ़ाए हैं। यस यस चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा हम इसके विषय में थोड़ा नहीं पढ़े हैं। और वीथी का अर्थ है मार्ग। और चित्त वीथी जो है वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और समझा है कि वो चित्त जो है उसको दिखाने का मार्ग है या रास्ता है। और जिसके अंतर्गत पंचद्वार वीथी, मनोद्वार वीथी 2 भाग किए गए चित्त वीथी में। और इसी के साथ जो मैंने चित्त वीथियों का मानव जीवन से संबंध को बताने का थोड़ा प्रयास किया है। यस यस बस हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर मेरी दरअसल मेरा पढ़ाई यहीं से हुआ है, बनारस से ही। अगला पत्र है अभिधम्म संग्रहों में संज्ञान प्रक्रिया, जिसका वाचन करेंगे अखिलेश कुमार एवं दिग्विजय मिश्र, साथ में शिवेंद्र कुमार मिश्र। इस पत्र में 3 शोधार्थी सम्मिलित हैं। प्रणाम सर, मैं दिग्विजय मिश्रा। इस पत्र में मेरा कुछ खास योगदान नहीं है, तो इसलिए सारा दायित्व ये लोग संभालेंगे। मैं कुछ टेक्निकल काम कर रहा हूँ, ये सब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना। मेरा रिसर्च का जो काम था, मतलब मैं पूर्व शोध छात्र हूँ यहीं का, दर्शन एवं धर्म विभाग। तो अब आगे का पत्र ये लोग पढ़ेंगे और आपका जो भी प्रश्न होगा उसका समाधान देंगे। सर मेरा नाम शिवेंद्र कुमार मिश्रा है और मैं पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग से विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ पे मैंने काम किया है, आचार्य बसु बंधु के योगदान पे। सर मेरा जो विषय है सर, प्रोफेसर लाल जी सर। जी 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 जी। तो जो मेरा पेपर का विषय है सर, अभिधम्मत संग्रहों में संज्ञान। सर जैसा कि संज्ञान प्रक्रिया अभिधम्मत संग्रह मेरा विषय है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे संज्ञान प्रक्रिया क्या है।
जैसे जिस प्रक्रिया मेरा इसमें मुख्य योगदान ये है कि विषय का निर्धारण मैं पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग का शोध छात्र था। मेरी पीएचडी हो चुकी है प्रोफेसर विमलेन कुमार जी के अंडर में। बौद्ध भाषा दर्शन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन अपोह सिद्धि के विशेष संदर्भ। जी जिस प्रक्रिया से हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है उसे हमें संज्ञान प्रक्रिया कहते हैं। संज्ञान प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार स्मृति का प्रवाह, भाषा को उत्पन्न करना तथा समाविष्ट करना, आकलन करना इत्यादि सम्मिलित होता है। बौद्ध संज्ञान प्रक्रिया का संपूर्ण प्रतिपादन अभिधम्म दर्शन में किया गया है। चित्त किसी वस्तु को एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित समय में संज्ञानित करता है, जिसे चित्तवृत्ति संज्ञान प्रक्रिया कहते हैं। सामान्य अर्थ में चित्तवृत्ति का अर्थ है चित्त का प्रवाह है, जबकि विशेष अर्थ में एक विशेष प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चित्त किसी वस्तु को संज्ञानित करता है। यही प्रक्रिया संज्ञान प्रक्रिया कहलाती है। संज्ञान प्रक्रिया 6 इंद्रियों के माध्यम से होती है। 6 इंद्रियां चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन है तथा क्रमशः इनमें 6 विषय हैं: रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्शब्द तथा धर्म है। अन्य शब्दों में प्रत्येक इंद्रिय निश्चित विषय का संज्ञान करती है तथा इनके क्षेत्र भी सीमित होते हैं। यथा चक्षु रूप का संज्ञान करती है, श्रोत शब्द का संबंधी विषयों का और क्रमशः इंद्रिय स्वयं के विषयों का संज्ञान करती है। इस कारण से संज्ञान प्रक्रिया इंद्रियों के नाम से संबोधित होती है। यथा चक्षु द्वार विधि, चक्षु द्वार से संज्ञान; श्रोत द्वार विधि, श्रोत द्वार से संज्ञान; घ्राण द्वार विधि, घ्राण द्वार से संज्ञान; जीवा द्वार विधि, जीवा द्वार से संज्ञान; काय द्वार विधि, काय द्वार से संज्ञान एवं मनोविज्ञान विधि, मनोद्वार से संज्ञान। लेकिन संज्ञान के लिए प्रत्येक इंद्रिया क्रमशः इनके विषय के साथ संबंधित चित्त के संबद्धता के अनुसार 6 प्रकार के विधि होते हैं: चक्षु विज्ञान विधि, श्रोत विज्ञान विधि, घ्राण विज्ञान विधि, जीवा विज्ञान विधि, काय विज्ञान विधि एवं मनोविज्ञान विधि। सामूहिक रूप से प्रथम 5 विधियां पंचद्वार विधि कहलाती हैं। इसमें 5 इंद्रियों के माध्यम से संज्ञान होता है। अंतिम विधि मनोद्वार विधि कहलाती है। विधि 2 प्रकार की होती है: पंचद्वार विधि तथा मनोद्वार विधि। अलग कर दिया गया, मनोद्वार विधि को अलग कर दिया गया। और यहाँ जो संज्ञान शब्द का प्रयोग किए हो, इसका पाली में क्या टर्म होगा? संज्ञान मतलब सर जिस वस्तु को हमें जाना कर सके, बीजानाति इति विज्ञान, जिस विज्ञान को हम जान सके उसको संज्ञान। चलो, तो इन दोनों को अलग अलग क्यों अध्ययन किया गया, पंचद्वार विधि और मनोद्वार विधि? पंचद्वार विधि सर जैसे चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा, काय है, इस सबका अपना अपना विषय है। लेकिन मनोद्वार विधि जो है सर वो धम्म को संज्ञानित करती है, इसलिए दोनों को अलग कर दिया गया सर। इसका विषय आभ्यंतर है, इसका अनंतर विषय है, इसलिए दोनों को अलग। ठीक है, जाओ इसको थैंक यू सर। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि को अच्छा जी जी, अभी सर तो पोस्ट डॉक के लिए ट्राई कर रहा हूँ जी। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। अगला पत्र है एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ चित्त एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन अभिधम्म, पाली मलिक और अंकिता गुप्ता के द्वारा। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पाली मल्लिक है, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज। आज मेरा टॉपिक है एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ चित्त एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन अभिधम्मत संग्रह। चित्त
सर मेरा नाम अंकिता गुप्ता, मैं यही फिलोसफी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन से पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी का ये एनालिटिकल स्टडी ऑफ चित्त एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अच्छा नहीं, पीएचडी का अलग है सर। विज्ञान भिक्षु की दृष्टि में योग की अवधारणा योग सार संग्रह के विशेष संदर्भ में। Chitta is one of the four ultimate realities, Paramartha. Chitta is translated as consciousness. In Abhidhamma, consciousness, Chitta is the pure awareness of the object. Here, awareness means just pure awareness, not the awareness. बंगाली का थोड़ा टर्न अलग होता है ना. Not the awareness we use in meditation. Awareness in meditation is actually mindfulness. In defining the word chitta, awareness means just the bare awareness. It knows that something is there. It is something like that. Consciousness is the pure or bare awareness of the object. It is like water which is clear. There are synonyms within words. Chitta is cheta, bihana, nama, mana, manasa, hidaya. The word heart is a synonym of chitta or mind or minds. For example, when we say one person has a good heart, that does not mean we are talking about the physical heart, but we want to tell about that person has a good mental attitude. These are synonyms for the word chitta. जी madam. When we want to depict consciousness chitta with 3 syllables, we can use the word bihana. When we need to describe 2 syllables, we use the words chitta or mana. There are 89 chittas and 121 chittas are expected in Abhidhammat Sangaha. ये पढ़ लेते हैं ना. Classification of chitta or consciousness. In this paper, chitta is classified according to the plans of existence and its nature. There are 89 or 121 chitta in the Abhidhamma Sangraha. Chitta is actually one with reference to the characteristics of knowing the object, but it is accompanied by different mental factors. So chitta becomes many. First, chitta is divided into mundana and supermundana. The mundana chittas are subdivided into sense sphere chittas, 54 chittas. And then there are from Shepar chittas or fine material Shepar chittas, 15. And then next there are Bengali. जी अभी इंग्लिश है. जी 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 जी. जी 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 जी. Sense sphere chittas are again divided into subdivision. They are unwholesome chittas, 12, rootless. So चित्त 4 प्रकार से क्लासिफाई में कामावचार, रूपावचार, अरूपावचार, लोकोत्तर चित्त. कामावचार 54 है. रूपावचार कुशल चित्त. सच्चिदानंद सर.
पढ़ेगी नहीं तो चलो ठीक है, प्रयास करो और टेक्स्ट को बढ़िया से पढ़ो, पढ़ के आइसोलेशन में काम हमारे कौन सुपरवाइजर, तो पूछेगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट व्हिच सुपरवाइजर, द लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, द रिसर्च मेथोडोलॉजी, द कंटेंट। कंटेंट में भी कई कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो पीएचडी वन मैन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन गुरुओं को अपने संपर्क में रखो। जैसे मैंने पीएचडी किया, वेस्टर्न कंपोनेंट भी था और बुद्धिज्म का, प्योर बुद्धिज्म का जैसे अभिधम्मत संघो है, वह उसी तरह का एक टेक्स्ट था, परमथ विनिश्चयो, उस पे मैंने काम किया। तो बुद्धिज्म जो पाली का कंपोनेंट था, मेरे पाली के सर लोग देखते थे। फिलॉसफी से 2 लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, प्रोफेसर एसआर भट्ट और एचएस प्रसाद। जादवपुर यूनिवर्सिटी से थे प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय, वो भी एक बहुत स्तंभ है। वो ये तीनों चारों लोग मिलके मुझे गाइड करते थे। तो कभी भी रिसर्च और स्टडीज आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो इसने उठा तो लिया, लेकिन अब क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? रूपावचरचित इसका नाम रख दिया दार्शनिकों ने, और इसके जो 5 ध्यानांग हैं, वितक वो भी रूप नहीं है, विचार वो भी रूप नहीं है, प्रीति वह भी रूप नहीं है, सुख वह भी रूप नहीं है, और एकाग्रता वह भी रूप नहीं है। समझ रहे हो बात? लेकिन इसको रूपावचर कह दिया गया। क्यों कह दिया गया, कोई बताए? पाली और बुद्धिज्म वाला बताइए। तो अब वही बता रहे हैं, और ये सारी चीजें अन्य भारतीय दर्शनों में भी वर्णित है, डेवलपमेंट है, कैसे डेवलप हुआ बताओ। छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को उठा के बौद्ध दर्शन में ही विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि और विज्ञानवाद जैसे वाद की स्थापना हो गई। चित्त मात्रम इदम सर्वम का सिद्धांत दे दिया, और इसी को आगे दोनों में कंपटीशन चल रहा था ना। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, शून्यवाद में जो माध्यमिक हैं वो भी मन की बात ही करते हैं, लेकिन उनका दूसरा ये है। आज दोनों को भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही स्थापित कर दिया। जब वो कहते हैं अनित्य अनात्म और दुख को स्थापित किया, जब कहते हैं कि न सही सही न असही सही माया बश्याय बुद्ध बुदंग, एक ही चीज को स्थापित किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसी चीज को दूसरे तरीके से समझाने के लिए डीकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। नहीं, अभी एक बच्चा कोई सांख्य योग पे बात कर रहा था, गीता में देखो। अब योग को भगवान कृष्ण 2 तरह से बात करते हैं, एक सांख्य योग की बात करते हैं, एक कर्म योग की बात करते हैं, एक ज्ञान योग की बात करते हैं, एक कर्म योग की बात करते हैं। तो ये सब कंट्राडिक्टरी नहीं है, डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइम में ये अपने आप को रेलिवेंट सिद्ध करता है। अब नागार्जुन को भी जब पढ़ना चाहिए, देखो भारत के बहुत बड़े मनीषी नागार्जुन पे जो हुए, वो हमारे सामने मूर्ति साहब की तस्वीर लगी हुई है। इतने प्रकांड विद्वान कि इनके सामने बड़े बड़े दार्शनिक
सामने बैठना नहीं चाहते थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने इतना बड़ा, माने उसको कहा जाता है कि कांड कर दिया कि मैं क्या बताऊं। हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वजों से, हमारे सुपरवाइजर प्रोफेसर के मित्तल फिलॉसफी ऑफ साइंस और बुद्धिज्म के प्रकांड विद्वान, मतलब वाइस चांसलर जो भी आते थे उनके सामने झुकते थे। उनका जब प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू हुआ तो ये रिजेक्ट कर दिए, बोले ये इस लायक नहीं है कि इसको प्रोफेसर बनाया जाए। देखो वो समय था। तो वाइस चांसलर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ये तो बहुत विद्वान आदमी है, इनको आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं। बोले कि नहीं, ये डिजर्व नहीं कर रहा। सोच लो क्या स्टैंडर्ड था उस समय भारत में उच्च शिक्षा का। अंत में दूसरे एक्सपर्ट और वाइस चांसलर एकदम कमरा बंद करके और हाथ जोड़ने लगे। चूंकि ये लोग तो आते थे तो क्षमा क्षमा करके लोग दौड़ते थे। सब तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आचार्य ये बहुत अच्छा स्कॉलर हैं, इनको प्रमोट किया जाए। तब कहे कि जब अब कुलपिता ही हाथ जोड़े हुए हैं तो मैं क्या करूं। तब इन्होंने लास्ट में उनको प्रमोट किया। तो सोचो क्या लेवल था। तो कहना, और जैसे है पय शोधन की परंपरा है, जो प्रश्न है उसको प्यूरिफाई करना है, उसको रिफाइन करना है। सिंह विकिलित की परंपरा है, मतलब जब नॉलेज तुम्हारा, तुम सेटिस्फाइड हो जाओ कि हम कंक्लूजन पे पहुंच गए तो सिंह गर्जना करो, जैसे सारनाथ में दिखा। सारनाथ में ऐसा थोड़े था कि 4 सिंह आके गर्जना करने लगा था। भगवान बुद्ध ने चारों दिशाओं में स्थापित कर दिया कि अब जो मैंने सिद्धांत दिया है वो पूरी तरह से स्थापित सिद्धांत है, वो निर्भीकता का प्रतीक है, वो ये है। तो सिंह विकिलित है, पय शोधन है, शोधन हार है, हार संपात है। ये है भारतीय दर्शन को और भारतीय शास्त्रों पर रिसर्च करने की विधियां। समझ गए ना। उसी तरह से है, अभी बुद्धिज्म में कहा कि जैसे ही तुम शुरू करते हो तो 3 चीज को फॉलो करो। परियत्ति को फॉलो करो, मतलब टेक्सचुअल स्टडी। परियत्ति पटिपत्ति को फॉलो करो, मतलब अब उसको अभ्यास करो। और पटिवेदन रियलाइज करो। भारत का ये है रिसर्च की परंपरा। खैर चलो, खूब बढ़िया से मेहनत करो। मेहनत में बातें हैं बच्चों, ठीक है? ये सहयोग से, इसी कार्यशाला के माध्यम से, इसी संगोष्ठी के माध्यम से सर का आना भी एक सहयोग। तो इन बातों को आप सब लोग ध्यान में रखेंगे, उसके अनुसार अमल करेंगे। सभी शोधार्थियों से मेरा यह आग्रह है। शोध तो विभाग कुछ नहीं होता, वो तो एक टूल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए एक विभाग चाहिए। विश्वविद्यालय तो यूनिवर्स है, नहीं। चलो आगे चलिए, लास्ट है। इस सत्र का अंतिम पत्र है कम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जो वाचन किया जाएगा तानजिन तांदुप और तेंजिन मिंकी के द्वारा। My name is Tenzin, sir. Research scholar from Pali and Department of Pali and Buddhist Studies, and our topic is Kama and its इनके अंडर में? Yes, sir. Who is your supervisor? Bimlendra Kumar, sir. अच्छा, बिमलेंद्र सर। Yes, sir. So Kama and its class. रिसर्च का टॉपिक क्या है? So Buddhist death rituals in the Trans-Himalayan region. A study Buddhist? on death rituals. Death rituals. Rituals? Death rituals.
डेथ रिचुअल्स। in the हाँ Trans-Himalayan देखो, region. अब डेथ रिचुअल भी कितना इम्पोर्टेंट है भारत में, कि एक मैसेज है, दिस इज नॉट अ रिचुअल, एक मैसेज है। हम तुम लोगों को बता रहे थे ना, च्युति चित्त की बात बता रहे थे। जब शरीर छूटने लगता है उस समय कॉन्शियसनेस की क्या स्थिति होती है, वो साइनाइड के स्वाद बताने जैसा है कि साइनाइड का जब ये हुआ तो उसका स्वाद क्या है, तो 4 आदमी की जान चली गई। कौन बताएगा च्युति चित्त की क्या स्थिति है, लेकिन आपको बताना है। योगी जो है योग बल से देख लेगा कि च्युति चित्त की क्या स्थिति, योगावचर जो है वो देख लेगा कि व्हाट इज द स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ च्युति चित्त। हाँ चलो बताओ, 5 मिनट में ब्रीफ करो। The theory, as we all know, the theory of karma is a fundamental doctrine in Buddhism, and as with the text of Abhidhamma Sangho in chapter 5, the notion of karma is thoroughly explained with the effect of rebirth and consciousness. And the Pali term karma literally means action or doing. Any kind of chetna or volition, whether mental, verbal, or physical, is regarded as karma. It covers all that is included in the phrase of thought, word, and deed. Generally speaking, all good and bad actions constitutes karma. In its ultimate sense, karma means all moral or immoral volition. Karma is action and vipaka, the fruit or results of its reaction, as shown in the Patisamutpad, the theory of relation. Just as every object is accompanied by a shadow, even so every volitional activity is inevitably accompanied by its due effect. Karma is like the potential seed. Vipaka should be likened to the fruit arising from the tree of the effect of result. And through going the classification of karma with respect to different function, karma is classified into 4 kinds: reproductive karma, supportive karma, counteractive karma, and the destructive karma, also known as the upagata karma. And there is another classification of karma according to the priority of effect, that is the Veti karma or the Garuka karma, death proximate karma, habitual karma, and the reserve or cumulative karma. Thus, there are classification of the karma which we are presenting. There are some questions on karma which rises in our mind while writing this paper. Is it mandatory for karma to produce specific vipak? For instance, kushala karma produces good result, akushal karma produces bad results. If yes, we see there are animals like dog being born in every rich human family and enjoying all their luxurious needs. Though the dog is not a human but an animal, still he is enjoying all these things which many of humans are deprived. The second question is whether any karma can be uprooted or not able to give its fruits if the counteractive karma or the destructive karma of that particular karma is produced. If yes, then why the Veti karma or the karma of the heinous act has to give its vipak? If it doesn't give its effect, then there is no difference between akushal karma arising by the small immoral acts and the heinous karma. Thirdly, whether the external factors such as reciting mantra and the circumambulating the stupas and the temple can remove our akushal karma. If yes, we cannot say the karma is not an effect by external force. And the last question on how karma decide the environment of a person he was born. Each person was born in different environments. There are good environments at some places, such as having good farm, fruits, and pieces, whereas other side place suffered with violence and starvation. हो गया? Yes. अब 2 मिनट में हमको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। बहुत हाई फाई लैंग्वेज। यस, यू एक्सप्लेन द थिंग्स। गुड मॉर्निंग सर। हमारा जो टॉपिक है, our topic is on the karma. Our topic is on the karma and its classification. So we just divide our paper in the 2 types. First is like what is the meaning of karma, and second is the classification. And then What is meaning of karma? Karma, which normally people say like it's an action, but I don't think like it's a specific physical, verbal, and mental action is known as a karma. Because when people are trying to define karma, they just say like chetna, which normally say chetna or volition or something. So chetna means like a mental factor. It is chetsika. So chetsika, it is a part of chetsika, universal chetsika. So I think karma is deal with the chetsika. So it is more the mental action. थैंक यू, वेरी गुड। तो मित्रों, रिसर्च के साथ इनजस्टिस नहीं। तुमने इतने दिनों में क्या अनुभव किया? तुम आर्कियोलॉजिस्ट हो, बताओ 2 मिनट। यहाँ आके बताओ।
2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, बस आ ही गया. Good morning, sir, and good morning, everyone. I'm Nancy Priya, and I'm doing PhD from Navnananda Mahavihar under the Department of Ancient History, Culture, and Archaeology. So I'm like completely having a different background, but what मैं यहाँ पे इसलिए आई because I want to know about the Buddhist ideology because my PhD is on Buddhism, like Buddhist art. So what I gain कि what is the crux of this Buddhism, like how Buddhism deals with the life, how Lord Buddha taught to live a life in a ideal way, in a ethical way. So in this whole lecture, all the words which were coming in this lecture was very new for me. But from this part, ये मुझे लगा कि now these words are something in my mind, like somewhere in my mind. And जब मैं अब इस अभिधम्म संघ को पढ़ूंगी तो कुछ बेस मेरे पास रहेगा जिससे मैं कॉन्शियसनेस ये नहीं. सारी चीजें. What would be the message for archaeologists from this platform? The very important thing as an archaeologist should know things which we get from the excavation to interpret it. So interpretation cannot be done without knowing the text. Basic philosophy. Yeah, basic philosophy of the Yes. text. So चलो बैठो. thank you. If Thank you sir. are an archaeologist and you have just excavated बोधिसत्वाज, अब उसमें क्षिति गर्भ बोधिसत्व है. What is the speciality of क्षिति गर्भ बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व. What is the concept behind worship Tara cult? So all these things are available in scriptures, in philosophy. And without knowing all these things, you cannot explain, you cannot examine the speciality, the features of Avalokiteshwar. In the first class, I was talking about Vajrapani Amitav in Ajanta. And in place of Vajra, he was holding one grass. Understand? And there was a big problem before us. Big question, big problem. Why he is holding a grass? We all sat in the feet of Avalokiteshwar. They started thinking. Then we interpreted. So, I tell you, and friends, this Abhidhamma Sangho is a backbone of classical Indian psychology, and this is the climax. Climax is Buddhist logic, where everything has been explained in different language, because every subject has its own language. And you have to understand the nuances of these languages in different subjects. Even within philosophy, even within Indology, we have to learn different languages, different ideas. The first day I told you how you can change all these theories into mathematics, isn't it? And through mathematical language, through mathematical propositions, you can understand this Chit, Chet, Rupa and Nibbana. Friends, this is my humble request. Request with folded hand, be honest with your work. I know today many scholars, it's a very wrong notion is going on in India. If researcher is women, girl,
simple topics, we will pick women empowerment in Buddhism, women empowerment in Indian classical literature. Friends, a lot of works have been done already. Through your research, search the problem of the universe, problem of the society. Because Indian studies are question-centric studies. Question means, problem means not कि समस्याओं पर, समस्या question, research problem. Question means the solution of the worldly things. इस पे हमारा ओरिएंटल स्टडीज, इंडियन स्टडीज टिका हुआ है. You have to do that, and then in future, if possible, we can meet. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने सर की बहुमूल्य टिप्पणियां सुनी और आप उसके अनुसार अपने शोध को आगे ले जाएंगे इस उम्मीद के साथ. सारी समस्या आरंभ हुई थी सर्वम दुखम से, जो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग यानी निर्वाण पर जाकर के समाप्त होती है, जिसको अश्वघोष अपने बुद्ध चरित्र में कहते हैं. बहुत विस्तार से उन्होंने कहा है, क्योंकि अश्वघोष सिर्फ बौद्ध दर्शन के ही विद्वान नहीं थे, संस्कृत साहित्य में भी बहुत बड़ा नाम है ये. तो दीपो यथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो दिशम न कांचित विदिशम न कांचित स्नेह क्षयात केवल मेति शांतिम. तो इस अभिप्सा को लेकर के हम सभी चले. इस आशा के साथ मैं इस सत्र के समापन की घोषणा करती हूँ. पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पर उपस्थित होने और हमको अपनी बहुमूल्य समय देने के लिए. पुनः अपना आपका स्वागत रहेगा. और अगले सत्र को मैं उम्मीद करती हूँ कि 15 मिनट का, और क्योंकि पहले ही समय हो चुका है, तो आप 12:30 12:15 हो रहा है, तो आप 12:30 पर यहाँ पर सभी लोग उपस्थित होंगे और नया सत्र आरंभ. ठीक है.